Hello everyone, I'm Kanak from Coding Blocks. तो आज का लीड कोड चैलेंज ऑफ द डे है काउंट ट्रिपलेट्स दैट कैन फॉर्म टू एरेज ऑफ कुलजोर. गिवन एन इंटीजर एरे और we want to select three indices I, J and K such that I is greater than equal to 0, J is greater than I, K is greater than equal to J and K is less than R dot length. So R here is the array itself. इन्होंने यहाँ पे let's define A and B as follows. तो A और B को ऐसे define किया है. A is a contiguous sub array, right, starting from I to J minus 1 and B starting from J to K, and A is the XOR of this contiguous subarray that is starting from I and ending at J minus 1, whereas B is the XOR of a subarray starting at J and ending at K. Okay, so return the number of triplets. So we have to return the number of triplets itself. So let's take an example here. Okay, so we'll just pick the example from the problem only. 2 3 1 6 7. Right, so this is our array, right? We have to find the number of triplets I, J, K, I, J and K such that XOR of elements from index I to J minus 1 and from J to K is equal. So let's take here the case where I is 0, J is 1 and K is 2. So let me put indexes above the elements for better understanding. So first case I is 0, J is 1, K is 2. So A would be 2 and B would be 3 XOR 1, that is equal to 2. So this is a valid triplet, right? Similarly, there can be one more triplet where I is 0, J is 2 and K is 2. So A would be 1 and B would also be 1. If B would be 1, B is this one. हम 2 to 2, 2 से स्टार्ट होके 2 पे ख़त्म हो रहा है और A 0 से स्टार्ट होके 3 पे ख़त्म हो रहा है. तो 2 XOR 3 equals to 1 and that is equals to 1 that is the element at this index, right? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो केस तो ये हो गए, राइट? सिमिलरली अगर मैं आई जे के 2 3 और 4 ले लेता हूँ, सो ए क्या होगा मेरा एलिमेंट एट इंडेक्स 2 दैट इज़ 1, ठीक है, क्योंकि आई और जे माइनस 1 इक्वल है तो एक ही एलिमेंट होगा. सिमिलरली बी क्या होगा, एलिमेंट एट XOR of elements from 3 to 4 to 6 XOR 7, that would be 1. So this is a valid pair, right? And one more pair that exists here, valid triplet, I mean, one more valid triplet that exists here is 2 4 4, right? So इसमें क्या होगा, आई टू जे माइनस 1 में 2 से लेके 3 तक आ जाएगा, क्योंकि जे 4 है तो 2 और 3 आ जाएगा ए के. तो अगर हम 2 और 3 का जोड़ लें तो वो 7 आ रहा है, बी 7 खुद है, तो ये भी एक वैलिड ट्रिपलेट है. तो ये 4 वैलिड ट्रिपलेट्स हमारे बन रहे हैं, राइट? और तो कोई वैलिड ट्रिपलेट इसमें बनता दिखाई नहीं दे रहा, तो हेंस आंसर वुड बी 4 वैलिड ट्रिपलेट्स. आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है. यू कैन टेक एनी अदर ट्रिपलेट यू वांट, बट वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले भी सकते हैं हम. लेट्स से कि मैं 1 2 3 ट्रिपलेट लेता हूँ, फिर मैं आई इज़ 1, जे इज़ 2 एंड 3. सो इस ट्रिपलेट में अगर हम देखें तो हम ए क्या होगा,
XOR of elements from index I to j minus 1, that would be element at index 1, जो कि क्या है 3 है, राइट. एंड सिमिलरली b क्या होगा, XOR of elements from indexes index j to k, जो क्या है 1 और 6 और 7 है. तो ये वैलिड ट्रिपलेट नहीं है बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू b. ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम में चल क्या रहा है, राइट. तो एक काम करते हैं, इसकी अप्रोच देख लेते हैं. तो सिंपल एन स्क्वायर अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, जो भी मेरे वैलिड ट्रिपलेट्स हो रहे हैं उसमें मेरा i, j और k है. तो XOR ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ri to rk would be 0. This would be true if this is a valid triplet. Why? Because you're dividing the sub-array from I to k into two different parts, right? And the first part is basically ends at an index before j, और दूसरा पार्ट j वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो अगर मैं इन दोनों का XOR ले लूँ, इन दोनों सब एरेज का, एरे सब एरे दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम I ending at j minus 1 and sub array starting from j, okay, right. अगर इन दोनों का XOR of this and XOR of this इक्वल है, तो इसका XOR तो 0 होगा ना. क्यों भाई, अगर हम इक्वल और इक्वल दो एलिमेंट हैं जो दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और मैं इन दोनों का XOR ले लेता हूँ तो 0 ही तो आएगा. तो XOR ऑफ दिस वुड बी 0. ये समझ में आ रहा है, ठीक है. तो इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि हमारी जो वैलिड ट्रिपलेट्स हैं उसमें जो ओवरऑल सब एरे बन रहा है उसका XOR तो 0 आएगा, ठीक है. तो rather than finding the triplets, can I find the pair of indexes जिनके बीच का जो सब एरे है उसका XOR 0 आ जाए? I can, and from that pair of index I can find the number of triplets also, right. तो let's say कि मेरा एक pair of index मुझे मिला I to j, I to k, for the sake of better understanding, and here k is greater than I, right. So for all j, here j is greater than I and j is less than equal to k, एक वैलिड ट्रिपलेट फॉर्म होगा. आप कहोगे कि क्यों होगा वैलिड ट्रिपलेट? देखो, अगर पूरे सब कॉन्टिन्यूस जो मेरा सब एरे है, कॉन्टिन्यूस सब एरे, इसका पूरे का XOR 0 है, तो अगर मैं इसे कहीं भी किसी भी एलिमेंट पे डिवाइड करूँगा दो पार्ट्स में, तो उन दो पार्ट्स का जो इंडिविजुअली XOR होगा वो भी तो 0, वो भी तो इक्वल होगा एक दूसरे के, तभी तो ओवरऑल XOR 0 होगा. तो मैं इसे अगर कहीं भी कोई भी j चूज़ करता हूँ ऐसा, एंड आई डिवाइड इट like this, here this bracket means j is not included, right. So this is understood. तो अगर इसका ओवरऑल का XOR 0 है तो ये तो इक्वल होगा ही होगा ना. कि क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इन दोनों को मिला के भी तो XOR 0 ही होगा. इसका XOR और इसका XOR अगर मैं ले लेता हूँ तो ये 0 होगा. और ये प्रॉपर्टी कब ट्रू होती है? जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो, है. ये दोनों वैल्यू 0 इक्वल होनी चाहिए तभी तो. आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों किसी भी j को चूज़ कर सकता हूँ ऐसे पेयर के टू फाइंड अ वैलिड ट्रिपलेट. पेयर क्या होगा मैंने पहले बता ही दिया. एक वैलिड पेयर वो होगा जिसका इसके करस्पॉन्डिंग जो
सब एरे बन रहा है उसका ओवरऑल जॉर 0 है। ठीक है, तो आई होप ये अंडरस्टूड है। ठीक है, खासकर ये वाला पार्ट कि मैं हाउ कैन आई बेसिकली चूज एनी जे बिटवीन आई एंड के टू गेट अ वैलिड ट्रिपलेट। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ मैं, बिकॉज आई कैन चूज अ जे एंड डिवाइड द chosen sub-array into two parts. And what is the specialities of these two parts? That the XOR of these two parts are 0. इन दोनों का XOR मिला के 0 होगा। ठीक है, एंड ये 0 कब हो सकता है, दो किसी भी दो वैल्यूज़ का XOR 0 कब हो सकता है, जब वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो। तो हैंस ये प्रूव हो रहा है कि भाई इन दोनों, ये जो दो हमारे सब कंटिन्यूस कंटिन्यूस सब एरे बने हैं, इनका XOR इक्वल होगा। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो क्या करते हैं, एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम एन स्क्वायर वाली इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ प्रीफिक्स एरे। एक प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं। व्हाट दिस प्रीफिक्स एरे वुड स्टोर, दिस प्रीफिक्स एरे वुड स्टोर द XOR ऑफ प्रीफिक्स। जो भी मेरे जितने भी प्रीफिक्स बन रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, उन सब का XOR ये स्टोर करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक 2 पॉइंटर्स, एक फॉर विच आई विल टेक द आउटर लूप एंड फॉर द अदर वन आई विल टेक द इनर लूप। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 इंडेक्स लूँगा, एक इंडेक्स जो कि मैं आउटर लूप से मैनेज करूँगा और एक इंडेक्स में इनर लूप से मैनेज करूँगा। तो लेट्स से मेरा आई एम फाइंडिंग थ्रू आउटर लूप। ठीक है, और मैं के को जो है वो एक इनर लूप बना लेता हूँ, उसके थ्रू करता हूँ। तो मेरे मिनिमम के क्या होना चाहिए आई के लिए, टू बी अ वैलिड पेयर, जो कि हमने डिस्कस किया था, i+1। ठीक है, कम से कम एक तो ज़्यादा होना चाहिए। वंस ये बन जाता है मेरा, देन what is needed, then I just have to check if prefix of i-1 is equal to prefix, okay I have done a small mistake here, मैं वेरिएबल के नाम चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट पुट देम अगेन k++, राइट। तो अगर ये प्रीफिक्स ऑफ के इक्वल है तो मुझे एक वैलिड पेयर ऑफ इंडेक्स मिल गया आई एंड के, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई एक सब एरे फॉर्म होता है फ्रॉम आई टू के, इसका XOR इक्वल हो, आई मीन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ i-1 के बाद अगला एलिमेंट क्या आएगा, आई आएगा। तो मैं अगर आई से के तक के सब एरे का XOR लूँगा तो वो 0 होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वाई वी आर यूजिंग दिस कंडीशन टू फाइंड आउट कि भाई आई एंड के से मेरे को एक ऐसा सब एरे मिल रहा है जिसका XOR 0 है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं देख लूँगा हाउ मेनी वैलिड एलिमेंट्स आई हैव टू चूज देम एज जे, कि भाई अब आई और के बीच में कितने जे मिल सकते हैं मेरे को। तो दैट इज सिंपल। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, k-i, भाई सिर्फ आई को छोड़ के से लेके i+1 तक सारे एलिमेंट्स को मैं जे चूज कर सकता हूँ, बिकॉज देयर वॉज ओनली वन कंडीशन दैट जे शुड बी ग्रेटर देन आई एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा, सिंपली अपने आंसर में ऐड कर दूंगा, और मैंने आंसर ऊपर एक डिक्लेयर कर दिया एंड दिस विल वर्क। तो ये तो हो गया एक ईजी अप्रोच। ठीक है, यही करके देख लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार इसका कोड करके देख लेते हैं।
तो ये मेरा प्रॉब्लम है। पहले तो मेरे को एरे का साइज फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने एन में स्टोर कर लिया। फिर आई मेक एन प्रीफिक्स एरे, लेट्स नेम इट प्रेफ। ठीक है, इसका साइज n+1 ले लेते हैं हम। ठीक है, एंड देन आई टेक सिंपली प्रीफिक्स जॉर प्रीफिक्स। तो वो कैसे करना है, 0 इज लेस देन n। ठीक है, मैं सारे एलिमेंट्स पर आइटरेट करूँगा। मैं प्रेफ मैं आर आई को प्रेफ i+1 में क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम डूइंग 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, और मेरे को एरे में जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और क्योंकि मेरा प्रीफिक्स एरे है तो मैं क्या करूँगा, उसमें जो पुराने मेरा प्रीवियस एलिमेंट है उसके साथ जॉर ले लूँगा। तो ये मेरा अब तक का प्रीफिक्स जॉर बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई डिक्लेयर एन वेरिएबल आंसर टू स्टोर माई आंसर काउंट। ठीक है, what I'll do is for int I is 0 1 बेस इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमारी क्या कंडीशन थी, इफ प्रेफ ऑफ i-1 इक्वल प्रीफिक्स ऑफ j। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमें एक पेयर ऑफ इंडेक्स मिल गया है जिसके करस्पॉन्डिंग एक जो सब एरे बनेगा उसका जॉर 0 है। नाउ आई कैन पुट j एट एनी इंडेक्स बिटवीन i एंड k, i एंड j हेयर। तो एक काम करते हैं, j को हम k ही डाल लेते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग जो हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, जो हमने डिस्कस किया था वही हुआ। ठीक है, तो अब i और k के बीच में जो भी कोई भी एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन i है एंड लेस देन इक्वल टू k है, मैं उसको j चूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे पास कितने ट्रिपलेट बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे। एंड आई रिटर्न द आंसर। तो ठीक है, तब तो सही लग रहा है। एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे के से चेंज कर दिया था। ये टेस्ट केस जो है हमारे एग्जाम्पल केसेस वो तो चल रहे हैं, पर सबमिट करके देख लेते हैं वेदर इट्स एक्सेप्टेड और नॉट। कोड इज रनिंग ओके। टाइम complexity is 0 millisecond, beats 100%. So thank you all. This was the solution for the problem of the day. Have a nice day.